we are discussing the retail trade, and in last lecture we have discussed about the services of the retailer to the wholesaler and to the consumer. By various way he give the different types of services to the wholesaler as well as to ultimate user consumer. And today we are going to discuss the types of trade, and within which we are going to discuss the large scale fixed shop retailer, the shopkeeper which operate their business on a large scale, who make the huge investment of capital and try to provide all types of services to their ultimate user, and these are the large scale fixed shop retailer. आप लोगों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें देखी होगी, जैसे बिग बाजार है, डीमार्ट है, रिलायंस है. These are the large scale retail trading shops, and there are some other examples also, like departmental stores, supermarket shop, chain stores, one price shop, and mall. These are all the large scale trading organization which are give the convenience to the consumer by providing the retail trading. Retailer have a different types, and up to the last lecture you have discussed the above two types. Now let's start the third one, that is chain store. Chain store, it is the third large scale retail shop where, let's discuss about it. Chain stores are retail store owned by single organization. Chain stores क्या होता है? It is a large scale retail organization which is owned by single organization and operate their shops in multiple locations of the same city or the multiple states of the same country. एक ही देश के अलग अलग मेट्रो सिटीज में या एक ही स्टेट के अलग अलग सिटीज में इस तरीके से एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपने दुकान ओपन करती है एंड ट्राई टू गिव द कन्वीनियंस टू द प्रोडक्ट by operating the chain stores. So how it is operated, let's discuss. The chain stores have a network of number of branches situated at different localities in the city or the different parts of the country. एक ही देश के अलग अलग स्टेट में या एक ही स्टेट के बड़े बड़े सिटीज में इस तरीके के चेन स्टोर्स ऑपरेट किए जाते हैं by the one or single organization. They appear the same internal and external in display. The chain stores have a same interference, मतलब बाहर से और अंदर से अलग अलग शहरों में भी होगी तो भी उनकी जो प्रेजेंटेशन होता है it is looks same. For example, you have maybe visited to the McDonald's or Subway, these types of hotels or the restaurants which are looks same to same at the different cities. अलग अलग शहरों में भी जाओगे तो उनका जो कलर होता है, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द बोर्ड, यूनिफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयज और वेटर्स, all look same to same. So we can say they appear same internal and external in a display. As well as chain stores are managed and controlled by the हेड ऑफिस. उनका एक हेड ऑफिस होता है किसी एक शहर में, वहां से वो सारी चीज़ों को परचेस करते हैं एंड इट इज सप्लाइड टू द डिफरेंट सिटीज. अलग अलग शहरों में जो उनके ब्रांचेस होते हैं, चेन स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे एक जगह पर परचेस करके उस प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है थ्रू द हेड ऑफिस. दैट इज देयर अपीयरेंस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन डिस्प्ले इज द सेम टू सेम. फॉर एग्जाम्पल, इट इज द फर्नीचर जो होगा वो सेम टू सेम होगा. द नेम बोर्ड, जो कंपनी का नाम होता है, वो भी सेम टू सेम दिखाई देता है. एज वेल एज द स्टाफ यूनिफॉर्म, उनका जो स्टाफ होता है, स्टाफ का यूनिफॉर्म भी सेम टू सेम होता है. तो दे आर सेम इन कलर एज वेल एज डिजाइन. उनका कलर सेम टू सेम होगा, डिजाइन जो होता है, मार्केटिंग का लोगो वगैरह, ऑल दिस थिंग्स आर सेम टू सेम. और इसका एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड, सबवे सर्फ, and there are so many other companies which are operate their chain stores or multiple shops. The definition of the chain store is here.
Very first, according to James Stephenson, a chain store shop consists of number of similar shop owned by the single business organization. एक ही business organization द्वारा या एक ही कंपनी द्वारा अलग अलग सिटीज में, मेट्रो सिटीज में या अलग स्टेट के अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट्स में जो कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है थ्रू द चेन स्टोर्स, दैट इज कॉल्ड द चेन स्टोर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड डेफिनेशन दी है क्लार्क एंड क्लार्क ने. Chain store system consists of number of retail stores which sell the similar product are centrally owned and operated under the one management. एक ही मैनेजमेंट के अंडर में जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने अलग अलग सिटीज में शॉप ऑपरेट करते हैं उन्हीं को चेन स्टोर्स कहा जाता है. The chain stores are the system consist of number of retail stores which sell similar product are centrally owned. एक ही ओनरशिप होती है, एक ही कंपनी की मालकी होती है एंड ऑपरेट अंडर द सेम मैनेजमेंट. एक ही मैनेजमेंट, एक ही कंपनी जो अपने बिजनेस अलग अलग शहरों में एक ही नाम से चलाती है, दैट इज द चेन स्टोर्स. लेट्स डिस्कस द फीचर ऑफ चेन स्टोर वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट फीचर, यूनिफॉर्म प्राइस. द प्राइस विच इज चार्ज इन द चेन स्टोर इट इज वन एंड सेम. मतलब आप दिल्ली के किसी मैकडोनल्ड में पिज्ज़ा खरीदोगे तो उसका प्राइस भी उतना ही रहेगा जितना बोईसर के किसी शॉप में आप पिज्ज़ा खरीदोगे. तो दैट इज द वन प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस डिसाइडेड बाय द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. जो मैनेजमेंट होता है, हेड ऑफिस होता है, वहाँ से पॉलिसीज डिसाइड की जाती है और उसके हिसाब से देश के हर एक कोने में जहाँ पर भी चेन स्टोर्स ऑपरेट किए जाते हैं, दे आर लॉन्च द ऑफर्स सेम टाइम एंड ऑल्सो देयर प्राइजेस आर ऑल्सो सेम. प्राइजेस जो होती है वो भी सेम टू सेम होती है. द प्राइस पॉलिसी इज डिसाइडेड एट हेड ऑफिस, सो एट ऑल द ब्रांचेस ऑपरेटेड थ्रू द चेन स्टोर शॉप द प्राइजेस आर यूनिफॉर्म. जो कीमत होती है वो हर एक शॉप में सेम टू सेम होती है चेन स्टोर्स के. अंडरस्टैंड? यूनिफॉर्मिटी, द लुक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लुक एज वेल एज कलर डिस्प्ले ऑफ द ऑल चेन स्टोर और द ब्रांचेस इज द सेम टू सेम. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वेटर्स वगैरह, उनके ड्रेसेस भी सेम टू सेम होते हैं, बोर्ड का कलर सेम टू सेम होता है, इंटीरियर जो सिटिंग अरेंजमेंट की जाती है कस्टमर्स को बैठने के लिए, दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म. सो यू विल फाइंड द यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइस, इंटीरियर, कलर, डिस्प्ले एंड ऑल. ओके. द थर्ड वन, it is the limited range of product. You will find that in the chain stores there is the goods which have the limited number of product. जैसे आप मैकडोनल्ड में जाते हो तो मैकडोनल्ड में वड़ा पाव खाने तो जाते नहीं हो, you have went there for buying the pizzas, different types of pizzas, and only the pizzas you can buy from the McDonald's. So we can say they have a limited range of products. उनके जो products होते हैं लिमिटेड रेंज में होते हैं. पिज्ज़ा तो पिज्ज़ा ही बेचेंगे. आप किसी और वड़ा पाव के जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हमारे बोईसर में गोकुल का वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो दे ऑपरेट देयर मल्टीपल शॉप्स इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बोईसर सिटी. लाइक दैट आई कैन से दे हैव द लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. उनका कोई एक प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत फेमस होता है एंड दे आर सेल दैट प्रोडक्ट in their different chain stores. Okay, so uniformity or limited of the range of products. Large investment to operate the chain stores, it is a requirement of huge investment in it. अलग अलग शॉप्स अगर आपको बड़े बड़े शहरों में ऑपरेट करने हैं तो बड़े शहरों में जो मॉल्स होते हैं या शॉप्स होते हैं जो रेंटल बेसिस पे भी खरीदे गए तो भी उनको बहुत सारा रेंट देना पड़ता है. So it is required a huge investment to operate the business through the chain store. Chain store के माध्यम से जब आप ये बिजनेस करना चाहते हो, you have to require the huge financial investment to operate the multiple branches. अलग अलग शहरों में अगर आपको दुकान ओपन करना है, चेन स्टोर्स ब्रांचेस ओपन करनी है, तो you must require the huge financial investment. Distribution through the branches. The products are by the head office
on a large scale and it is supplied directly from producer to the particular branch. तो जो परचेसिंग की जाती है वो हेड ऑफिस के द्वारा की जाती है and it is done through the head office. Purchase done by the head office on large scale and it is supplied at the different branches of the chain stores. Cash sales. The chain stores sell the products only on cash basis, not on credit basis. Only cash basis पे इनका प्रोडक्ट सेल किया जाता है to avoid the problem of bad debts. पैसा डूब ना जाए इसके लिए वो ऑन क्रेडिट सेल नहीं करते हैं. They only deal on cash basis. Okay. The last one, the quality of goods. The chain store or multiple shops are tied to deal in a standardized or branded goods. एक ब्रांड क्रिएट किया जाता है and it is sold to the ultimate user consumer through the chain store retail shop. So we can say they have their particular quality. For that quality consumer visit to the chain store. अगर आपको पिज्ज़ा खाना है तो आपके एरिया में जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं या स्टॉलर्स होते हैं, they are also prepare the pizza. But if you want to eat a proper pizza, you must visit the McDonald's. In this way, you can get the proper quality product from the chain stores. So chain store is what? The shops or retail trading organization which operate their business through the multiple branches. Okay, that's it. Thank you. Let's discuss the fourth large scale retail shop, and that is one price shop. One price shop, the shop where price of all the products or goods are same is known as one price shop. जिसे आपको नाम से ही पता चल जाता है, एक ऐसी दुकान जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदो आप उसका प्राइस वन एंड सेम होता है, एक ही प्राइस. जैसे कि 99 रुपीज़, 49 रुपीज़, 499 रुपीज़, 199 रुपीज़, 999 rupees. These types of the one price shop which are have the one and same price. The shop which sells the large variety of goods of daily use utensils at lower price. कम कीमत में जो डेली यूज प्रोडक्ट होते हैं जैसे किचन वेयर्स हो गए, हाउस वेयर हो गए, घर में लगने वाली छोटे छोटे चीज़ें वस्तुएं, इसका जो सेल किया जाता है, it is done through the one price shop. The features, the product of their size and quality are sold at one common uniform price. जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होती है इट इज़ यूनिफॉर्म कॉमन. जैसे एक ही टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए सेम प्राइस रखा जाती है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वन प्राइस शॉप. Let's discuss about the features of the one price shop. The very first feature is uniform price. Price एक ही होती है, सेम होती है and there is no possibility of bargaining. आप वहाँ पे घास घीस नहीं कर सकते हो, कीमत कम करने के लिए नहीं बोल सकते हो. You have to just pay the price or the tag attached on the product. Product के जो tag लगाया हुआ है उसकी प्राइस आपको देनी होती है and it is not the possibility of bargain. लोअर प्राइस, जो प्राइजेस चार्ज की जाती है वन प्राइस शॉप द्वारा, इट इज हैव अ लो प्राइस, कम कीमत में. अगर मार्केट से कंपेयर करें तो आप वन प्राइस शॉप में जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो इट इज लोअर बिकॉज दे नॉट गिव अ टाइम फॉर बार्गेनिंग एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज सेल द प्रोडक्ट्स ऑन लोअर प्राइस. कम कीमत में वो अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं. वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, यू विल फाइंड द डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वन प्राइस शॉप्स. बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे घरों में ज़रूरी सामान होता है जैसे कोम है, अलग अलग किचन के बर्तन वगैरह होते हैं, निप्स और लाइटर्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विच आर वी परचेज फ्रॉम द वन प्राइस शॉप एंड दे हैव टू कीप द वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स. लोकेशन, मोस्टली द one price shops are operated
नियर द क्राउडेड एरिया। ऐसा कुछ एरिया होता है जैसे रेलवे स्टेशन के पास में या थिएटर के पास में, दे ऑपरेट देयर business because they feel that the consumer should come by any way. The consumer feel the uh, easiness to reach the shop. दुकान तक पहुंचने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए they operate their shops in local area. And the fifth one, that is cashless uh, cash sales. The one price shops also sell their product on cash basis. कैश में ही सेलिंग करते हैं, ऑन क्रेडिट वो प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, क्योंकि दे आर मोस्टली डील इन द लोअर प्राइस प्रोडक्ट। जो कम कीमत वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे 49 रुपीज़, 99 रुपीज़, दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर सेल विच आर रिक्वायर्ड इन हाउस होल्ड वर्क। जो घर में काम करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें लगती है, ऐसी चीज़ें वो आपको बेचते हैं थ्रू द वन प्राइस शॉप। एंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द वन प्राइस शॉप, इट इज the sixth point, that is less capital. The capital required for one price shop, it is a so less, कम इन्वेस्टमेंट में आप वन प्राइस शॉप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार जो लॉरी होती है, लॉरी के ऊपर जो लेडीज आर्टिकल्स होते हैं जैसे हेयर पिन, नेल पेंट, जूता चप्पल, इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो वन प्राइस शॉप्स द्वारा सेल की जा सकती है। सो वी कैन से द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वन प्राइस शॉप, इट इज द less. Understand? That's all for the large scale retail trading. You should learn it multiple times and note down in your classwork book. Thank you.